ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਸਾਹਾਰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਰਬਤ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਰਬਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਸ਼ੂ, ਪਕਸ਼ੀ, ਮਨੁੱਖ, ਪੌਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵ, ਸਰਬਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਗਈ ਸਰਬਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਸ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਬਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੁੱਖ ਦਿਓਗੇ ਦੁੱਖ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, ਸੁੱਖ ਦਿਓਗੇ ਸੁੱਖ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਨਵਤਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜੋ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ, ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ ਰਹਾਓ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਮਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਜਿਤ ਖਾਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਪੀੜ ਦੇਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਭ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ, ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਚੱਲਣਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ,
चित खादे तन पीड़िए, मन में चले विकार। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। ते जे अन्न ही ठीक नहीं है, अन्न असी किसी दिया बद दुआवां लै रहे हाँ, किसी ਨੂੰ दुख दे रहे हाँ, किसी ਦਾ हक मार रहे हाँ, जीव जंतुओं की हत्या करके खा रहे हाँ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? क्योंकि जिस दे अंदर जान है वो बचने की कोशिश करता है, ਉਹਨੂੰ मरने तो डर लगता है। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਾंस ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਡਰ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ऐसे करके अज असी इन्ने दुख भोग रहे हाँ, क्योंकि जे असी जीव जंतुओं ते दया नहीं कर रहे तो साडे ते परमात्मा किस तरह दया करेगा? साहिब श्री गुरु नानक देव जी कहते, नानक नाव खुदाए का दिल हच्छे मुख ले, अवर दिवाजे दुनी के झूठे अमल करे। दिलों श्रद्धा भाव नाल परमात्मा दा नाम अच्छे मुख नाल है, दिल अच्छा होएगा तो मुख तो अच्छी बाणी निकलेगी। ते जेड़े बाकी दुनियादारी वास्ते, दिखावे वास्ते असी कर्म कर रहे हैं झूठे, उन्होंने कोई साडा साथ नहीं देना। वो ते असी संसार नूं खुश करन लई कर रहे हैं, अपनी मान वडियाई लई कर रहे हैं। ये सब इत्थे ही रह जाना है। यह सब एक असी ड्रामा कर रहे हैं अपने आप नूं खुश करन लई, लेकिन नहीं। जे साडा दिल पवित्र नहीं है, दिल अच्छा नहीं है, दिल च दया नहीं है, दिल अच्छा किस तरह होएगा? दिल च दया होनी चाहिए है। दया होएगी ताही धर्म है, जे दया नहीं है तो धर्म कित्थों आएगा? तौल धर्म दया का पूत, ते दया ही नहीं है तो फिर धर्म कित्थों आएगा? ते दिल विच दया होएगी तां मुख तो जिहड़ा असीं नाम जपांगे वो साडे मन नूं पवित्र करेगा। ते जे दया नहीं है साडे मन विच, ते जो असीं नाम भी जप रहे हां, असीं लोक विखावा कर रहे हां, ते लोक विखावा करके किधरे भी नहीं पहुंचांगे। और कबीर जी ने ते बाणी विच बहुत सख्ती नाल इस चीज नूं सामने लिआंदा है साडे। और श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, मास मास कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने। कि जेड़े मूर्ख लोग ने वो मास मास करके झगड़ते ने, पर वो ज्ञान नहीं, उन्होंने ध्यान नूं नहीं जानिया, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं आया, ध्यान नहीं किया। क्योंकि ध्यान नहीं किया तो ज्ञान नहीं आएगा। जिहड़ा ज्ञान असीं बाहरों इकट्ठा कर रहे हैं किताबां दा, वो साडे किसी काम नहीं आना। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ थोड़ी प्रेरणा मिल सकती है, परमात्मा के राह ते चलण दी एक रुचि जाग सकती है, पर वो ज्ञान साडे अगे काम नहीं आना। काम आना है जिहड़ी साडा आत्म ज्ञान जिहदी गल कीती गई है, वो आत्म ज्ञान जिहड़ा है वो साडे काम आना है। ते जब तक आत्म ज्ञान नहीं होएगा तब तक इस चीज की सानू समझ ही नहीं आएगी। कौन मांस कौन साग कहावे, किसमें पाप समाने। मांस की है, साग की है, केड़ी चीज जेड़ी असी खा रहे हैं, जो असी कर रहे हैं वो पाप कर्म है। किसमें पाप समाने, केड़ी चीज सानू पापां वल लेके जा रही है। ਇਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਮਾंस कौन साग कहावे, ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਿਰਣਾ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿ ਮਾंस ਕੀ ਹੈ, ਸਾਗ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੌਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਾਗ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਆਤਮਾ विकसित हो गई है कि सानू पौधों का भी दर्द महसूस होता है, तो फिर ऐसे भी बहुत लोग हैं जिहड़े सिर्फ श्वासां की ऊर्जा ते रहते हैं। जिहड़े जानवर हैं वो अपनी जान बचाने लई भजदे हैं, कोई भी जानवर मरना नहीं चाहता। जिहड़े पौधे हैं उन्हां दे अंदर दी जिहड़ी चेतना है वो इन्नी ज्यादा विकसित नहीं है, वो एक जगह रहंदे हैं। और साडा जिहड़ा शरीर है उन्हां पौधियां दी ऊर्जा नूं पहचान लई बनिया होया है। असी उन्हां पौधियां नूं साग सब्जियां नूं खांदे हां तां साडे शरीर चों पच जांदियां हन। साडा शरीर उन्हां दे अनुसार बनिया है, साडा शरीर मांस खाण दे, मांस पचाण दे अनुसार नहीं बनिया।
बहुत सारे पौधे जगत विच, वनस्पति जगत विच ऐसियां जड़ियां बूटियां जिन्हां नूं खाण नाल बंदे दे प्राण निकल जांदे हन, ते की असीं ओह खांदे आ? नहीं खांदे, असीं अपनी बुद्धि दा इस्तेमाल करने आ। ते इत्थे असीं अपनी बुद्धि दा इस्तेमाल क्यों नहीं करदे? कि जेड़ा पशु पक्षी मछली जान बचाने लई भज रहा है, तड़प रहा है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਕੜ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ कि की खाना ठीक है, की खाना ठीक नहीं है। बानी ते कह ही रही है, बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादे तन पीड़िए मन में चले विकार। ये जेड़ा पाप करके खाना खा रहे हैं, जिदे करके साडे तन विच रोग आ रहे ने, तन पीड़िया जा रहा है, मन विच विकार चल रहे ने, ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਪ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। और यह गल झगड़ा करन दी नहीं है। जब तक असी ध्यान नहीं करांगे, सानू अंदरों ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक असी इस चीज नू समझ ही नहीं सकते कि की ठीक है की गलत है। और कबीर जी कहते हैं, वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਝੂਠਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸਭ में एक खुदाए कहत हो तो क्यों मुर्गी मारे। जे सारियां विच परमात्मा है ते फिर मुर्गी च परमात्मा नजर नहीं आता, बकरी च परमात्मा नजर नहीं आता, गां च परमात्मा नजर नहीं आता, मछलियां विच परमात्मा नजर नहीं आता। परमात्मा की चेतना ते हर किसी दे अंदर है। जेड़ा भी अपनी जान बचाने लई भज रहा है, वो चेतना उहदे अंदर ज्यादा विकसित है। पत्थर दे अंदर चेतना है लेकिन वो भजदा नहीं। वनस्पति दे अंदर थोड़ी होर वध चेतना है, पर वो भजदी नहीं अपनी जान बचाने वास्ते। लेकिन पशु पक्षी मछलियां अपनी जान बचाने लई भजदियां हन। ते सारियां दे अंदर उस परमात्मा दी चेतना है, ते फिर क्यों मार रहे असी जीव जंतुआं नूं। और साडे ते पुरातन ऋषि मुनिया दी यह परंपरा रही है कि अगर वो किसी पेड़ पौधे नूं भी कटदे सी ते पहले ओहदे कोलों इजाजत लैंदे सी कि सानू तेरा फल, तेरा पत्ते, तेरा चाहीदा है ते सानू तू इजाजत दे कि असी एदा इस्तेमाल कर सकीए। ते पूजा करके प्रार्थना करके ओनू तोड़िया जांदा सी, ओनू लिया जांदा सी। पेड़ पौधों का भी इन्ना सत्कार किया जांदा सी। आज असी उन्हां सारियां सिद्धांतों तो दूर चले गए हाँ। मुल्ला कहो न्याय खुदाई, तेरे मन का परम ना जाई। रहाओ ठहराव दे के कह रहे ने कि ये किस तरह का न्याय तेरा कि तू कुछ जानवरों उत्ते मार के खाना, लेकिन तू कहना कि मैं तो बहुत धार्मिक हाँ। लेकिन जे सारियां विच परमात्मा है तो फिर तेरे मन का परम क्यों नहीं दूर हो रहा अजे तक? ये की न्याय है तेरा? ए की परमात्मा का न्याय है कि किसी नूं तू मार के खा रहा है? कहते हैं पकड़ जियो आनिया दे विनाशी, माटी को विस्मल किया। तू किसी जिंदा जीव नूं पकड़ के मारिया, ओनू तू ओदे प्राण ले ले, ओनू मार दिता ते तू मारिया किनू? तू ते मिट्टी नूं ही मारिया। जोत स्वरूप अनाहत लागी, कहो हलाल क्या किया। ओ जेड़ी आत्मा निकल के किसी होर रूप में चली गई ते तू किनू मारिया? उस परमात्मा दी जेड़ी चेतन सत्ता सी, उस मुर्गी विच, गां विच, मछली विच जो अपनी जिंदगी दे अनुभव लैन आई सी, तू ते ओनू अपने ओदे अनुभव ही नहीं लैन दिते, तू ते ओनू खत्म ही कर दिता और ओ फिर किसी होर रूप विच चली गई। क्या उजू पाक, क्या मुंह धोया, क्या मसीत सिर लाया, ते की फायदा तेरे मुंह धोन दा ते तेरे हाथ धोन दा ते तेरे मस्जिद विच जान दा। इत्थे कि सिर्फ वो ऐ नहीं कह रहे कि मस्जिद विच जान दा की फायदा, सारियां वास्ते कह रहे कि मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद जान दा, ए सारे कर्म कांड करन दा की फायदा जे मन विच दया ही नहीं आई। ते जो दिल में कपट निवाज गुजारो, क्या हज काबे जाया। दिल विच ते कपट है ते फिर प्रार्थना करन दा, हज काबे जान दा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तीर्थ यात्रा जान दा की लाभ होया। तू ना पाक पाक नहीं सूझिया, तिसका मरम ना जानिया, कह कबीर भिस्त ते चूका, दो जुग स्यों मन मानिया। तू ते पाक है ही नहीं, पवित्र नहीं, तू ते अपवित्र है। और तू परमात्मा दे जेड़ा गूढ़ ज्ञान है उन्होंने जानिया ही नहीं। ते तू ते स्वर्ग दा दरवाजा अपने वास्ते बंद करता ते नरक दा दरवाजा खोलिया। पाप कर्म इकट्ठे कर ले, दुख दे के जीवां नूं किन्नी ताड़ना सखत कीती है। और असी कहने कि नहीं गुरबाणी च लिखे ही नहीं। कबीर जी अगे कहते ने, सरजियो काटे निर्जियो पूजे, अंत काल को पारी। कि जिदे विच जीव है ओनू तू कट रहा है,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਜੀਵ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ ਐਨੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਚੜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। राम नाम की गत नहीं जाने जानी भै डूबे संसारी। परमात्मा दे नाम जेड़ा राम घट घट विच रमिया होया, ओदी ते तू सार ही नहीं जानी, ते तू ते ए संसार रूपी सागर भव सागर च डुबना ही डुबना है। और कहंदे ने जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत। जेड़े कपड़ियां ते खून दे छिट्टे पै जांदे ने ते असीं कहने कपड़ा गंदा हो गया, पवित्र हो गया, ओनू उसे वेले उतार देईदा। ते जेड़े खून पी रहे ने मनुखा दा, जानवरां दा, उन्हां दा दिल किस तरह, चित्त किस तरह निर्मल हो सकता है। कोई साडे घर अगर पालतू कुत्ता भी होवे, असीं रोटी खा रहे और वो आके उहदे च मूंह लगा देवे, असीं कहने झूठी हो गई है। लेकिन असीं जिस वेले जानवरां नूं मार के खा रहे हां, तां सानूं इह नहीं आंदा कि असीं अपने पेट नूं शमशान घाट क्यों बना रहे हां। मरे होए आ जिहड़ा जीव है, कोई घर दा बंदा भी अगर शरीर छड्ड दिंदा है ते ओहदे हत्थ लाण लग्गिआं भी असीं डरने आ, ते ओनू जिसले संस्कार करन लई लै जाने ते पूरा घर साफ करने आ, धोने आ, सानू इन्ना डर लगदा है। ते जेहड़े जीव जंतुआं नू मार के खा रहे हां असीं, ते सानू जरा भी डर नहीं लगदा। ते साडा जेहड़ा दिल है वो किस तरह, मन किस तरह पवित्र होएगा। जी बदो सो धर्म कर थापो, अधर्म कहो कित भाई। ते जीवां नू मार के ते कबीर जी कह रहे हैं, तुसी कह रहे हो असीं धर्म कमा रहे हैं, ते फिर अधर्म की है, ऐ समझाओ मैनू। सवाल कर रहे ने कि जे जीवां नू मार के तुसी कह रहे हो असीं धर्म कमा रहे हैं, ये सही है, ते फिर अधर्म की है। आपस को मुनिवर कर थापो, काको कहो कसाई। जे तुसी अपने आप नू संत मुनि कहंदे हो, फिर कसाई कौन है। तुसी मार रहे हो ते तुसी अपने आप नू संत कह रहे हो कि असीं धर्म कर रहे हैं, ते फिर अधर्म की है और कसाई कौन है। मन के अंधे आप ना बूझो, कहाँ बुझावो भाई। कह रहे ने तू मन दा अंधा है, अखा दा अंधा नहीं है, मन दा अंधा है। तू अपने आप नू जानिया ही नहीं ते तू दूजियां नू की समझाएगा। माया कारण विद्या बेचो, जन्म अबिरथा जाई। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਧਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮੁਨੀ ਕਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਸਾਈ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆ ਵੇਚੋ, ਜਨਮ ਅਬਿਰਥਾ ਜਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਮ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, तेरा जन्म ही बिल्कुल व्यर्थ चला जाएगा, जो तू परमात्मा दे नाम नू वेच रहा है, परमात्मा दे दिते ज्ञान नू बेच रहा है। ते कबीर जी अगों होर स्पष्ट करते ने कि मैं ही नहीं कह रहा, तू नारद बचन ब्यास कहते सुख को पूछो जाई, कह कबीर रामे रम छूटो नहीं ता बूढ़े भाई। कह रहे ने मैं ही नहीं कह रहा, नारद मुनि कोलो, ब्यास मुनि कोलो, सुखदेव मुनि कोलो जाके पूछो। जद तक राम नू नहीं जानिया, जेड़ा सृष्टि दे कण कण विच रमिया राम है, जद तक ओदी सोची नहीं आई, ओनू अपने अंदरों नहीं जानिया, ते डुबना ही डुबना है। किन्ने कठोर शब्दां नाल ताड़ना करके सानू समझा रहे ने, सानू सवाल कर रहे ने कि जे तुसी धर्मी हो ते फिर अधर्मी कौन है, जे तुसी संत हो ते फिर कसाई कौन है। ते कबीर जी कहते ने कबीर पांग माछली सुरा पान, जो जो प्राणी खाहे, तीरथ बरत नेम किए ते सबे रसातन जाहे। जेड़े लोग पांग मछली सुरापान जो इन्हां चीज़ां दा उपयोग करते हैं, सेवन करते हैं, वो किन्ने भी तीरथ बरत नाम जपे जो भी करे, सब पताल भी चला जाएगा, ओदा कोई फल नहीं है, क्योंकि दया नहीं है। जो गुरु ने मना किया उही गल्लां असीं कर रहे हां, ते गुरु साडी बांह किस तरह पकड़ेगा। गुरु साडी बांह तां ही पकड़ेगा जो गुरु ने मना किया है, वो गल्लां तो असीं बाज आ जावांगे। कहंदे रोजा धरे मनावे अल्लो, स्वादत जी संघारे, आपा देखे अवर नहीं देखे, काहे को जख मारे। कबीर जी मुल्ला नू कह रहे ने रोजा धरिया ते तू परमात्मा अल्लाह नू मनाण लई तू वध कर रहा है, मार रहा है, हत्या कर रहा है, अपने स्वाद नू देख रहा है, दूजे दी जिहड़ी जान जा रही ओनू नहीं देख रहा। ये क्यों झक मार रहा है, किनू दिखा रहा है। बार बार बाणी विच ऐसे ताड़ना की गई है, फिर भी असी अखां ते पट्टी बन के कह रहे हैं कि सानू तो मना ही नहीं है, असी तो खा सकने हैं,
ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਨਰਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹ ਰਹੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੀ नहीं है कि जो तेरे अंदर है वही दूजे दे अंदर भी है। खबर ना करे दीन के बारे ताते जन्म लेखी, जन्म ही तेरा किसी लेखे नहीं लगना। तेनू ते दुनियादारी दी खबर है, तेनू दीन दी खबर ही नहीं है। ते बौरा बौरा कहते ने जेड़ा अपनी सुध बुध खो बैठा है, तू ते अपनी सुध बुध खो बैठा है, ते तेरा ते जन्म ही व्यर्थ चला जाएगा, किसी लेखे नहीं लगेगा। इस वास्ते इन्हां चीजां तो बाज आ जा। जिथे सानू संतां गुरुआं ने पीरां ने समझाया, दया करने दा रस्ता दसिया, दया सब तो उत्तम धर्म गिनिया गया। बाणी च किया गया जी दया परवान, 68 तीरथ सगल पुन जी दया परवान। जीवां ते दया करन लई बार बार किया गया। ते जे असी जीवां ते दया नहीं कर रहे तो फिर साडा लाभ की है। और सिंहा उपर नूं गुरु अंगद देव जी ने यही उपदेश दिता कि अज तू इन्ने बकरे मारन लैके जा रहा है ते इन्हां दा पाप ते तेरे सिर ते चढ़ेगा, ते रिश्तेदार ते खा के अपने घर चले जाणगे, नरकां विच जाके तैनूं ही लेखा देना पेगा। उस वेले कोई तेरा साथी नहीं बनेगा। ते अज विज्ञान इस चीज नूं सिद्ध कर रहा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो बहुत वड्डे विज्ञानिक होए ने, वो कहंदे ने कि इस धरती नूं और इंसान नूं बचाउण लई सिर्फ शाकाहार ही एक ऐसा भोजन है जिहड़ा बचा सकता है। अगर ऐसे तरह आदमी जीव जंतुआं नूं मारदा रहा, उन्हां दा कतल करदा रहा, ते जीव जंतुआं नूं मारन ते जिहड़ियां दुख दियां दर्द दियां तरंगां उत्पन्न हुंदियां ने, ओही तरंगां धरती ते भूचाल, सुनामी, बाढ़ अरे वड्डियां वड्डियां प्राकृतिक जिहड़ियां मुसीबतां आंदियां ने ओदा कारण ने, जिहड़ा कि जीव जंतुआं नूं इन्ना कष्ट दे दे के मारिया जांदा है। एक स्लॉटर हाउस जिहड़ा हुंदा है, कसाई खाना बूचड़ खाना हुंदा है, ओहदे च अगर 50 जानवरां नूं मारिया जांदा है ते 1040 वाट दियां तरंगां पैदा हुंदियां ने, दर्द दियां तरंगां। ते सोच के देखो रोज किन्ने जानवरां नूं किन्ने बूचड़ खानियां च मारिया जांदा है, ते किन्नियां दर्द दियां तरंगां असीं रोज पैदा कर रहे हां, ते ओह धरती दे विनाश दा कारण बन रहीआं ने। ते जे असीं चाहने आ कि मनुक्खता बची रहे, आने वालियां पीढ़ियां बचियां रहन, ते सानूं सोचना पएगा। जैसा अन्न वैसा मन। सानू अपने अन्न ते ध्यान देना पेगा, सानू सात्विक खाना शुद्ध खाना खाना पेगा। ऐसा खाना ना खाइए जो किसी नू दर्द दे के आया होवे। जिथे जीव जंतुआं ते दया करनी है, उत्थे किसी मनुख दा भी हक नहीं मारना। ऐसे वास्ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने सब तो पहला जिहड़ा सानू सिद्धांत दिता किरत करो, 10 नोआं दी किरत करो, फिर नाम जपो। क्योंकि जे किरत सही नहीं है तो नाम जपन च मन लगेगा ही नहीं। ते फिर जो किरत कीती, फिर नाम जपया, फिर वंड छको दा सिद्धांत दिता। ते जे असी इन्हां सिद्धांतां दा पालन नहीं कर रहे, फिर असी किहड़े पासे जा रहे हैं, सानू सोचना पेगा। दोस्तों, गुरबाणी आप पढ़ो, विचार करो, सुनिया सुनाइया गल्लां ते भरोसा ना करो कि उन्हें भी कहता ते सानू ते मना ही नहीं है। नहीं, आप पढ़ोगे ते तुहानू पता चलेगा कि बानी सानू की समझा रही है, की करन लई कह रही है, की करन लई मना कर रही है। जो मैनू थोड़ा बहुत समझ आया मैं तुहाडे सारिआं नाल साझा कीता। एक नवे विषय नाल फिर तुहाडे नाल विचार साझा करांगे। तद तक सत श्री अकाल, धन्नवाद।